دوستوں، کبھی آپ نے محسوس کیا ہے جیسے کوئی آپ کو اندر سے بدل رہا ہو، جیسے آپ اب وہ نہیں رہے جو کبھی تھے، نہ کوئی زخم، نہ چیخ، نہ شور، مگر دل میں ایک مسلسل بے-چینی، ایک تھکن، ایک خالی پن۔ یہ خاموش زہر ہوتا ہے اور اکثر وہی لوگ دیتے ہیں جنہیں ہم سب سے زیادہ عزیز سمجھتے ہیں۔ یہ بات بڑی تلخ ہے لیکن ہے حقیقت۔ کبھی وہ آپ کو دنیا کا سب سے خاص انسان بناتے ہیں اور کبھی ایسے غائب ہو جاتے ہیں جیسے آپ کی کوئی اہمیت ہی نہ ہو۔ کبھی ہر بات پر آپ کے ہاں میں ہاں اور کبھی ہر جملے میں شک، طعنہ اور طنز۔ یہی ہے ایموشنل مینپولیشن، ایک ایسا ذہنی کھیل جو سامنے سے نہیں، دل کے اندر سے کھیلا جاتا ہے۔ اور افسوسناک حقیقت یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ اس کھیل کا حصہ بن چکے ہوتے ہیں، مگر انہیں تب ہوش آتا ہے جب وہ اپنی پہچان کھو بیٹھتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں 5 ایسے خفیہ سائن جنہیں میرے نفسیات تو فوراً پہچان لیتے ہیں، مگر ہم اور آپ جیسے عام لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں، اور یہی سائن ہمیں اس جال میں پھنساتے ہیں جہاں سے نکلنا آسان نہیں ہوتا۔ اور خاص طور پر تیسرا سائن، اگر آپ نے وہ سن لیا تو ہو سکتا ہے آپ کا پورا ماضی آنکھوں کے سامنے گھوم جائے۔ تو ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، کیونکہ یہ صرف سائن کی بات نہیں ہے، یہ آپ کے مینٹل سیلف ڈیفنس کی بات ہے۔ یہ وائرس کی بات ہے جو یہ چاہتا ہے کہ آپ کا دل اب مزید کسی کی کھلواڑ نہ بنے، کوئی آپ کے ساتھ کھیلے نہیں، کوئی آپ کے ساتھ زیادتی نہ کرے، کوئی آپ کو محبت کے نام پر بے وقوف نہ بناتا رہے۔ اس لیے اس ویڈیو کو غور سے دیکھیں اور ہر لفظ کو سمجھیں تاکہ آپ مزید کسی کے ہاتھوں کا کھلونا نہ بنیں۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ سائن نمبر 1، لو بمبنگ۔ پہلے تم سب کچھ تھے، اب کچھ بھی نہیں۔ کبھی آپ نے محسوس کیا کہ کسی نے آپ کو اس شدت سے چاہو کہ لگو کہ زندگی میں واقعہ کوئی خاص آ گیا ہے۔ ابتدا میں وہ ہر لمحہ آپ کے ساتھ ہوتا تھا، کالز، میسیجز، تحفے، تعریفیں، بے پناہ توجہ۔ ایسا انٹینس رومانس ہوتا ہے کہ انسان خود کو کسی فلمی کہانی کا ہیرو یا ہیروئن سمجھنے لگتا ہے۔ ان کی ہر بات میں محبت جھلکتی ہے اور آپ کو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے آپ ہی ان کی زندگی کا مرکز ہیں۔ مگر پھر سب کچھ ایک دم خاموش ہو جاتا ہے، بدل جاتا ہے۔ جو شخص دن میں 10 بار فون کرتا تھا وہ اب آپ کے میسج بھی نظر انداز کرنے لگتا ہے۔ جو ہر بات پر تم میرے لیے خاص ہو کہتا تھا اب وہ الٹا طعنہ دیتا ہے کہ تم ہر بات کو مسئلہ کیوں بناتے ہو، مجھے کام کرنا ہوتا ہے، کیوں مجھے ڈسٹرب کرتے ہو۔ اور آپ حیران رہ جاتے ہیں یہ سب اتنی جلدی کیسے بدل گیا۔ بس یہی ہے لو بمنگ، ایک نفسیاتی چال جس میں پہلے محبت کی بارش کی جاتی ہے اور پھر اچانک سب کچھ ختم۔ اس کا مقصد ہوتا ہے آپ کو ایموشنلی ٹریپ کرنا۔ وہ پہلے آپ کو ایک نشے کی طرح اپنے پیار کا عادی بنا دیتے ہیں اور پھر وہ نشہ چھین کر آپ کو بے چین چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ اچانک تبدیلی کوئی حادثہ نہیں بلکہ ایک سوچا سمجھا حربہ ہے جسے انٹرمیٹنٹ ری انفورسمنٹ کہتے ہیں، یعنی وہ کبھی بہت اچھے بن جاتے ہیں اور کبھی مکمل اجنبی۔ آپ کو لگتا ہے شاید آپ سے کوئی غلطی ہوئی ہے اور آپ خود کو بدلنے لگتے ہیں، ان کے موڈ کے مطابق جینے لگتے ہیں، اپنی خوشی، اپنی سیلف ریسپیکٹ اور باؤنڈریز تک قربان کرنے لگتے ہیں، صرف اس امید پر کہ وہ پہلے جیسا ہو جائے۔ خاص طور پر پاکستان جیسے معاشروں میں جہاں لوگ رشتوں کو نبھانا فرض سمجھتے ہیں، وہاں ایسی ٹاکسک مینپولیشن کو محبت میں اتار چڑھاؤ سمجھ کر برداشت کیا جاتا ہے۔ لیکن سچ یہ کہ جب کسی کا رویہ مستقل نہ ہو اور وہ آپ کے ساتھ صرف اس وقت اچھے ہوں جب ان کا موڈ ہو یا انہیں آپ کی ضرورت ہو، تو وہ محبت نہیں، کنٹرول ہوتا ہے۔ وارث کی بات یاد رکھیں، اگر کوئی انسان پہلے آپ کو آسمان پر بٹھائے اور پھر زمین پر پٹخ دے اور آپ ہر بار خود کو ہی قصوروار سمجھنے لگیں تو آنکھیں کھولیے، یہ محبت نہیں بلکہ ایموشنل مینپولیشن کا پہلا زہریلا اشارہ ہے۔ سائن 2، گیس لائٹنگ۔ کبھی آپ نے خود پر شک کیا ہے جب آپ ایک رشتے میں ہوتے ہیں اور بار بار ایسا محسوس ہونے لگے کہ شاید مسئلہ آپ کے دماغ میں ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اصل مسئلہ آپ کے ساتھ کھیلا جانے والا نفسیاتی کھیل ہو۔ اس کھیل کا نام ہے گیس لائٹنگ۔ یہ ایک خطرناک نفسیاتی حربہ ہے جس میں دوسرا شخص جان بوجھ کر آپ کی یادداشت، آپ کے جذبات یا آپ کی پرسپشن کو جھٹلاتا ہے۔ مثلا آپ کسی بات کو یاد رکھتے ہیں لیکن وہ شخص کہتا ہے ایسا کبھی نہیں ہوا، یا تم بہت حساس ہو، ہر بات کو دل پر لے لیتے ہو، یا میں نے وہ بات کبھی نہیں کہی، تم بس خود ہی سوچ لیتے ہو۔ یہ جملے چھوٹے لگتے ہیں مگر ان کا اثر بہت گہرا ہوتا ہے۔ ایسا آپ کو یقین ہونے لگتا ہے کہ شاید واقعہ مسئلہ آپ میں ہے، آپ خود پر شک کرنے لگتے ہیں، اپنی بات کو بار بار ریویو کرتے ہیں، اپنے احساسات کو دبانے لگتے ہیں، اور پھر ایک دن آپ کی خود اعتمادی ختم ہو جاتی ہے۔ گیس لائٹنگ کا اصل مقصد یہی ہوتا ہے، آپ کو کمزور بنانا، تاکہ آپ ہر فیصلے کے لیے، ہر جذبے کے لیے، ہر سچ کے لیے اسی شخص پر ڈیپینڈ کریں جو آپ کو مینیپولیٹ کر رہا ہے۔ یہ ایک ایسا ذہنی شکنجہ ہے جس سے نکلنا آسان نہیں، کیونکہ یہ دھوکہ جسم سے نہیں دماغ سے جڑا ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ ہمارے معاشرے میں عام ہے۔ مثلا اگر آپ نے کسی ابیوسو کا ذکر
किया तो फौरन कहा गया ये तो बस मजाक था, तुम बहुत संजीदा हो गए, या तुम हर वक्त शक क्यों करते हो, तुम्हें हर किसी पर एतमाद का मसला है। ये जुमले बार बार सुनकर आप अपने आप पर एतबार खो देते हो। अगर आप बार बार कंफ्यूज हो रहे हैं वाकई वो बात हुई थी या नहीं, तो ज़हन में रखें, याददाश्त धोखा खा सकती है मगर सबूत नहीं। इसलिए अहम बातों का रिकॉर्ड रखें, व्हाट्सएप चैट, वॉइस मीमो, नोट्स, कुछ भी जो आपको ज़हनी हकीकत को वैलिडेट कर सके। ये कोई पैरोनिया नहीं, ये खुद को महफूज रखने का अमल है। अगर किसी रिश्ते में आपको अपने दिमाग पर शक होने लगे तो शायद वक्त आ गया इस ज़हनी जाल से निकलने का। साइन नंबर 3, ट्रायंगुलेशन, तीसरे को बीच में लाना। मेरी कजन तो सब कुछ समझ जाती है। यह जुमला सादा लगता है लेकिन इसके पीछे गहरा ज़हनी खेल छुपा होता है। ट्रायंगुलेशन एक ऐसी डार्क साइकोलॉजी की टेक्निक जिसमें आप और उस शख्स के दरमियान तीसरा किरदार लाकर इमोशनल क्वास पैदा किया जाता है। मकसद होता है कि आपको कांस्टेंट कंपैरिजन में डालना ताकि आप अपनी वर्थ पर शक करने लगे। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल लगता है, बातों में कभी कभार किसी और का जिक्र आता है, जैसे मेरी एक दोस्त तो ऐसी सिचुएशन को बड़े आराम से हैंडल करती है, या मेरी कजन हमेशा फीलिंग्स को समझती है, या मेरी कजन हमेशा मेरी फीलिंग्स को समझती है। आप सोचते हैं ये सिर्फ कैजुअल गुफ्तगू है, लेकिन वक्त के साथ ये मामूल बन जाता है। हर छोटे मसले पर, हर इख्तलाफ पर किसी तीसरे का हवाला देकर आपको नीचा महसूस करवाना होता है। ये तरीका आपकी इमोशनल सिक्योरिटी को हिला देता है। आप खुद से पूछने लगते हैं क्या वाकई मैं इतना बुरा हूँ, क्या वो वाकई किसी और के साथ ज्यादा खुश रहता है। ये सवालात आपके ज़हन में शक और बेचैनी का जहर खोल देते हैं। नतीजा ये होता है कि आप प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि आप काफी हैं, आप बेस्ट हैं, आप परफेक्ट पार्टनर हैं, और यही उस मैनिपुलेशन का मकसद होता है, आपको इमोशनल स्टेबिलिटी को हिलाकर आपको कंट्रोल करना। यहाँ एक और चालाकी ये होती है कि वो तीसरा शख्स हमेशा वो होता है जो आपको डायरेक्ट नुकसान नहीं पहुंचा रहा, कजन, दोस्त, कुलीग, ताकि आप उस पर सवाल भी ना उठा सकें। आपके जज्बात को इनवैलिडेट किया जाता है बगैर किसी लाउड अब्यूज के। आप ऐसा ऐसा इमोशनल कंपटीशन का शिकार हो जाते हैं जिसमें जीतने की कोई गारंटी नहीं, सिर्फ थकन, उलझन और खुद पर डाउट बाकी रहता है। हमारी तंबीह यह है कि अगर आप बार बार किसी इनविजिबल मुकाबले में अपने आप को डालने जा रहे हैं, अगर कोई शख्स बार बार किसी और को आइडियल बनाकर आपको कमजोर करने की कोशिश कर रहा है, तो रुक कर सोचें, ये मोहब्बत नहीं है, ये साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन है। हकीकी रिश्ता वो होता है जहां कंपैरिजन नहीं, कनेक्शन होता है, और जहां आपको जीतने के लिए नहीं, समझने के लिए सुना जाता है। साइन नंबर 4, इमोशनल ब्लैकमेल एंड गिल्ट ट्रिप। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम ये जरूर करोगे। ये जुमला शायद आपने कभी किसी करीबी इंसान से सुना हो। पहली नजर में ये एक जज्बाती अपील लगती है, लेकिन दर हकीकत ये एक गहरी नफसियाती चाल हो सकती है। इसमें सामने वाला शख्स अपने जज्बात, तकलीफ या मोहब्बत को हथियार बनाकर आपको मजबूर करता है कि आप उसकी बात माने, चाहे वो आपकी मर्जी के खिलाफ हो। ये वो मकाम है जहाँ मोहब्बत को इस्तेमाल किया जाता है, एहसास जुर्म पैदा किया जाता है और आपको बांध कर वो करवाया जाता है जो आप नहीं करना चाहते, और आप वो कर देते हैं सिर्फ इसलिए कि आप अच्छे इंसान बन सकें। इमोशनल ब्लैकमेल कई शक्लों में आता है। कभी कोई कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दिया और तुम इतना भी नहीं कर सकते, या मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा, या तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। ये सब बातें सुनकर दिल कटता है, ज़मीर बोझ महसूस करता है, और अक्सर इंसान अपनी खुशी, आजादी और मर्जी को कुर्बान कर देता है सिर्फ इसलिए कि सामने वाला नाराज ना हो। यह चीज खानदानी रिश्तों में ज्यादा देखी जाती है। माँ कहे बस तू ही मेरा सहारा है, अगर तूने इनकार किया तो मेरा क्या बनेगा, या बीवी कहे कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो अपने माँ बाप को छोड़ दो, या शौहर बोले तुम्हारी वजह से मैं दुखी हूँ, तुम बदल नहीं सकती। ये सब अल्फाज असल में एक जंजीर होते हैं जो ऐसा ऐसा इंसान को अपने अंदर जकड़ लेती है। आप अपनी खुशी, ख्वाब और शनाख्त खो देते हैं सिर्फ इसलिए कि दूसरा बंदा नाराज ना हो, या वो क्या चाहता है, या वो दुखी ना हो। ऐसा लगता है जैसे मोहब्बत एक इम्तिहान बन गई हो जहाँ हर दिन साबित करना है कि हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ, चाहे इसके बदले में आपको अपने ऊपर जुल्म ही क्यों न सहना पड़े। लेकिन वारिस की बात का असूल याद रखें, मोहब्बत अगर शर्तों में बंधी हुई हो तो वो सौदेबाजी होती है, रिश्ता नहीं। अगर कोई इंसान आपसे सच में मोहब्बत करता है तो वो आपको गुनहगार महसूस नहीं कराएगा, वो आपको आजादी देगा, एतमाद देगा, और वो जानता होगा कि मोहब्बत मांगी नहीं कमाई जाती है। इसलिए अगर कभी आप खुद को एक ऐसे मकाम पर पाएं जहां मोहब्बत के नाम पर आपको बार बार झुकाकर, डराकर या शर्मिंदा करके आपसे फैसले करवाए जा रहे हो, तो रुक कर सोचें, क्या ये वाकया मोहब्बत है या सिर्फ एक खूबसूरत सा जाल जिसमें सिर्फ आप फंसते जा रहे हैं। साइन नंबर 5, आइसोलेशन एंड इंफॉर्मेशन कंट्रोल।
तुम्हें कोई और नहीं समझेगा। ये जुमला जब पहली बार सुनने को मिले तो शायद आपको खास महसूस हो, जैसे वाकई किसी ऐसे शख्स से जुड़ गए हैं जो आपकी हर बात समझता है, जो दुनिया से अलग है, जो सिर्फ आपका है। लेकिन यही जुमला अगर बार बार दोहरा दिया जाए तो ये आपको एक जाल में कैद कर सकता है। एक ऐसा जाल जो दिखने में मोहब्बत का लगता है मगर हकीकत में वो एक जज्बाती कैद है। इमोशनल मैनिपुलेशन के इस फेज में इंसान ऐसा ऐसा तन्हा होने लगता है। वो दोस्तों से, घर वालों से, हत्ता कि अपने अंदर की आवाज से भी दूर होने लगता है। अगर आपने महसूस किया हो कि आपके पुराने दोस्तों से आपका राब्ता कम होता जा रहा है, आपकी सोशल मीडिया पर सरगर्मियां किसी और की नजर में हैं, या आपकी हर बात पर सवाल उठाया जा रहा है कि तुम उससे क्यों मिले या वो तुम्हारे लिए अच्छे नहीं है, तो होशियार हो जाएं, क्योंकि ये वो कदम है जो आपके इर्द गिर्द की दुनिया को तोड़कर सिर्फ एक शख्स के गिर्द महदूद कर देता है। एक और चालाक तरीका ये होता है कि आपको गैर महसूस तरीके से दूसरों से बदगुमान कर दिया जाता है। मसलन तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हें कंट्रोल करना चाहती है या तुम्हारे दोस्त तुम्हें इस्तेमाल करते हैं। इन जुमलों का मकसद सिर्फ एक है, आपके एतमाद को तोड़ना, ताकि आप सिर्फ एक ही शख्स पर इन्हिसार करें और वो शख्स खुद को आपका निजात दहिंदा कहे, मगर असल में वही आपकी आजादी का कातिल होता है और वही मैनिपुलेटर होता है। ऐसी सूरत हाल में सबसे ज्यादा नुकसान ये होता है कि आपका सपोर्ट सिस्टम, यानी वो लोग जो मुश्किल वक्त में आपका सहारा बन सकते हैं, वो आपकी जिंदगी से अलग होते चले जाते हैं। और जब कभी आपको उस शख्स की ज्यादती का एहसास हो तो आपके पास कोई नहीं होता जिससे आप बात कर सकें। यही तन्हाई वो खामोश जेल है जो दिमाग में तमीर की जाती है। वारिस की चालाकी यही है कि आपको ये याद दिलाए कि अगर किसी रिश्ते में आपके बाकी रिश्ते छिनने लगे तो वो रिश्ता नहीं, एक कैद है। अगर आपको अपनी सच्चाई, अपनी मालूमात या अपनी दुनिया तक पहुंचने से रोका जा रहा है तो ये मोहब्बत नहीं, ज़हनी कंट्रोल है। अपने लिंक्स बचाएं, क्योंकि जो आपको दूसरों से काट दे वो कभी आपको मुकम्मल नहीं कर सकता। प्रोटेक्शन स्ट्रेटजीज। दोस्तों, कभी कभी हमें लगता है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन दिल के किसी कोने में एक हल्की सी बेचैनी छुपी होती है। वही बेचैनी हमारी गट फीलिंग होती है जो अक्सर हमें खबरदार करने आती है। अगर कोई हमें बार बार कंट्रोल कर रहा हो, हमें नीचा दिखा रहा हो या तन्हा कर रहा हो, तो ये फितरी एहसास हमें इशारा देता है कि कुछ गलत हो रहा है। सबसे पहला कदम यही कि हम अपनी और उस अंदरूनी आवाज को नजरअंदाज न करें, बल्कि सुनें, समझें और उस पर अमल करें। दूसरा कदम है बाउंड्रीज बनाना, चाहे वो आपके शौहर हों, बीवी, माँ बाप या कोई दोस्त। हर रिश्ता एक हद चाहता है। अगर कोई बार बार आपकी राय को नजरअंदाज करे, आपको जज्बाती तौर पर ब्लैकमेल करे या ज़हनी तौर पर कंट्रोल करने की कोशिश करे, तो वक्त है कि आप अपनी हदें वाज़ेह करें। तीसरी चीज है सबूत। अगर आपको लगे कि कोई मुसलसल आपको ज़हनी तौर पर नुकसान पहुंचा रहा है तो बातों का रिकॉर्ड रखें। व्हाट्सएप पर की गई बातचीत, मैसेजेस, ऑडियो, सब कुछ। ये न सिर्फ आपकी क्लैरिटी के लिए जरूरी है, बल्कि अगर आप किसी माहिर से मशवरा लेने चाहें तो ये मालूमात मददगार साबित हो सकती हैं। चौथा कदम है तन्हाई से बचना। जो लोग हमें ज़हनी तौर पर कंट्रोल करना चाहते हैं वो हमें बाकी दुनिया से काटने की कोशिश करते हैं। ऐसे में किसी एक सच्चे दोस्त, किसी बहन भाई या कुलीग से राब्ता रखना बहुत जरूरी होता है। कभी कभी एक सादा सी बात भी इंसान को जगा देती है। और आखिर में मेरे नफ्सियात से मशवरा लेने में कभी शर्मिंदगी महसूस न करें। दिमागी सेहत जिस्मानी सेहत से कहीं ज्यादा नाजुक और कीमती होती है। जब आप ज़हनी तौर पर महफूज होंगे तभी आप बाकी दुनिया का सामना पूरे एतमाद तरीके से कर सकेंगे। खुद को संभालना कमजोरी नहीं, असल ताकत है। ताकत का इखलाकी पहलू, एक सख्त मगर ताकतवर आखिरी पैगाम। दोस्तों, ज़हन पर असर डालने वाली ये तमाम टेक्निक्स बिलाशुबा बहुत ताकतवर हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल एक नाजुक लकीर पर चलने जैसा है। किसी की नफ्सियात से खेलना, उसे गैर महसूस अंदाज में कंट्रोल करना या उसके एहसासात को अपनी ताकत के लिए इस्तेमाल करना, ये वो रास्ता है जो वक्ती तौर पर फायदा दे सकता है, मगर अंजाम में रिश्ते टूटते हैं, एतमाद बिखरता है और आपका अपना ज़हन भी बेचैन हो जाता है। जो चालें आज आप दूसरों पर आजमा रहे हैं, कल को वही चालें आप पर भी चल सकती हैं। ताकत सिर्फ ये नहीं है कि आप किसी को मैनिपुलेट कर सकें, बल्कि असल ताकत ये है कि आप किसी कमजोर लम्हे में भी इखलाकी हद न तोड़ें। अपने जज्बात को काबू में रखकर दूसरों के जज्बात का एहतराम करना ही सच्चे और पुरअसर इंसान की पहचान है। अगर ये इल्म आपको सिर्फ इन्फ्लुएंस के लिए चाहिए तो इसे इल्म ही की तरह इस्तेमाल करें, शऊर बेदार करने के लिए, खुद की हिफाजत के लिए और उन लोगों को पहचानने के लिए जो आपको अपनी सोच का गुलाम बनाना चाहते हैं। याद रखें,
इंसान बनाने वाली ताकतें हमेशा बर्बाद करने वाली ताकतों से बेहतर होती हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी इज्जत करें तो पहले खुद को ज़हनी तौर पर ताकतवर बनाएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी ऐसी ज़हनी चालों से महफूज रह सकें। कमेंट्स में हमें बताएं कि आपको इनमें से कौन सी तकनीक सबसे ज्यादा खतरनाक लगी, और सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि अगली वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे आप दूसरों के ज़हन में अपनी जगह बना सकते हैं इज्जत के साथ और असर के साथ। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।